Good morning, class. Today we are starting with chapter number 7, Control and Coordination. In the previous chapter, we looked at life processes involved in the maintenance function in living organisms. There we had started with a notion we all have that if we see something moving, it is alive. Some of these movements are in fact a result of growth. As in plants, a seed germinates and grows, and we can see that the seedling moves out or moves over the course of few days. It pushes the soil aside and comes out. But if its growth were to be stopped, these movements would not happen. Some movements, as in many animals and some plants, are not connected with the growth. A cat running, children playing on the swings, buffaloes chewing the cud, these are not movements caused by the growth. Why do we associate such visible movements with life? A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism. The cat may be running because it has seen a mouse. Not only that, we also think of movement as an attempt by a living organism to use changes in the environment to their advantage. Plants grow out into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out of swimming. Buffaloes chew the cud to help break up the tough food so as to be able to digest it better. When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. Each kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly, clearly. The movement to be made depends on the event that is triggering it. Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response. In other words, living organism must use system providing control and coordination in keeping with the general principles of the body organization. In multicellular organism, specialized tissues are used to provide this control and coordination activities. अभी हम लोगों में मान्यता क्या है कि कोई भी चीज़ लिविंग बीइंग है तो वो मूवमेंट करेगी, वो ग्रो करेगी, ग्रोथ करेगी. नॉन लिविंग थिंग है वो तो ग्रो करेगी नहीं और वो मूवमेंट भी नहीं करेगी. मान लो नॉन लिविंग थिंग पंखा है, वो ग्रो नहीं होगा, उसकी साइज़ नहीं बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे दिया तो मूवमेंट करेगा गोल गोल, है ना. तो मूवमेंट एक चीज़ है, ग्रोथ अलग चीज़ है. अगर आपने बीज को ज़मीन में डाल दिया, सनलाइट, मिट्टी, पानी उसको मिलता रहेगा तो सीड क्या करेगा, मूवमेंट करेगा. पहले वो ग्रो करेगा और फिर ज़मीन के बाहर आ जाएगा, पेड़ बन के, पौधा बन के, है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है और मूवमेंट भी हो रही है ना. अभी मान लो आप चुपचाप बैठे हो, है ना, और च्युइंगम खा रहे हो तो मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ मूवमेंट है, ग्रोथ नहीं हो रहा है ना. तो गाय जब बैठ के घास खा रही है, चारा चबा रही है, तो वो मूवमेंट कर रही है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रही है. तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के लिए होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मूवमेंट के लिए होते हैं. अभी देखो पीछे से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ, राइट, आंसर बोर्ड में से देख देख के, और अचानक पीछे से चींटी ने काटा तो मेरा एफर्ट पीछे चला जाएगा, राइट. तो हाथ से लिख रहा हूँ और पीछे भी हाथ गया तो ये मूवमेंट कर रहा है, इसका ग्रोथ से कोई रिलेटेड नहीं है. अंडरस्टूड. तो ग्रोथ एंड मूवमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. एनिमल्स
अभी मूवमेंट जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, राइट। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस and muscular tissue, which we have studied in class 9. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? All information from our environment is detected by specialized tips of some nervous cells. These receptors are usually located in our sense organs, such as the inner ear, the nose, the tongue, and so on. So, gustatory receptors will detect the taste, while olfactory receptors will detect the smell. This information acquired at the end of the dendritic trip of the nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse sets off to release some of the chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nervous impulse travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulse from neurons to other cells, such as muscle cells or the gland cells. It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to the other part of the body. Look at the figure 7.1a and identify the parts of neurons where information is acquired, through which information travels as an electrical impulse, and where this impulse must be converted into a chemical signal for the onward transmission. अभी आपने एक रेस देखी होगी, है ना, लंबी रेस होती है ना, तो ट्रैक के अंदर एक खिलाड़ी खड़ा होता है, राइट। उसके हाथ में वो हाथ में पेपर जैसा होता है, राइट। वो दौड़ते हुए जाता है, राइट। जब वो एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो वहाँ पर जो खड़ा होगा ना उसको वो पेपर देगा, वो पेपर लेके फिर वो भागना शुरू करेगा, है ना। मतलब आधी रेस इसने कंप्लीट की, आधी रेस उसके पार्टनर ने कंप्लीट की, है ना। तो उसने क्या किया, पास ओवर कर दिया ना, हाथ में जो पेपर था, उसके हाथ में जो पेपर था उसने वो पास ओवर कर दिया दूसरे को, और दूसरा दौड़ने लग गया, राइट। अगर वो 4 या 5 राउंड लगाने होते उसके, बहुत लंबी रेस होती, 4 या 5 राउंड लगाने होते, तो क्या करता, एक राउंड वो लगा के आएगा, फिर जो खड़ा था ना उसको फिर से दे देगा हाथ से, राइट, और फिर वो दौड़ेगा, तब तक वो रेस्ट करेगा, राइट। तो हमारी बॉडी का मेंटेनेंस करने का काम जो है वो तो है नर्वस सिस्टम का है। जैसे आप बैठे हो, राइट, अभी मैंने आपको बोला ना कि कुछ लिख रहे थे देख के और अचानक पीछे से चींटी ने काटा, तो तुम्हारे उंगली को किसने ऑर्डर दिया, पीठ पे काट रही है ना, उसमें उंगली को क्या। अगर मैं नज़मा को डांट रहा हूँ तो सुहानो को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वो बीच में बोले कि सर मत डांटो प्लीज़, ऐसा उसको तबीयत नहीं था इसीलिए उसने लर्न नहीं किया, वो आपकी फ्रेंड है तो बोलेगी, नहीं तो अंदर ही अंदर खुश होगी, भले डांट पड़ी। सर मैं तो बोलती हूँ मारो इसको, डांटो नहीं, है ना। तो पीठ में जब खुजली हो रही है, चींटी काट रही, तो उंगली को उसमें बीच में घुसने की क्या ज़रूरत है खुजाने के लिए। नहीं, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, हमारी पूरी बॉडी काम कैसे करती है, कोऑर्डिनेशन में काम करती है। जब हम चलते हैं तब क्या होता है, आप ट्राई करना कभी, जब आप चलते हैं ना तो आपके हाथ आगे पीछे जाते हैं, राइट। अगर आपको बोला जाए हाथ स्ट्रेट ही रखने हैं और फिर चलो, मज़ा नहीं आएगा, थक जाओगे। और अगर हाथ सीधे रख के दौड़ने का बोला तो है ना। तो हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है,
कोऑर्डिनेशन में चलती है। जब ये पैर आगे जाएगा तो ये हाथ आगे जाएगा, फिर ये पैर आगे जाएगा तो ये हाथ आगे जाएगा, तो हम लोग दौड़ते हैं ऐसे, है ना। कभी कभी ऐसे मूवमेंट करना, ये पैर के साथ में यही हाथ आगे ले जाना दौड़ते वक्त। जब ये पैर हाथ में जाए वो परेड नहीं करवाते हैं, हाँ लेफ्ट राइट। लेफ्ट में क्या होता है, जब ये पैर आगे जाता है तो ये हाथ आगे जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पैर साथ जाए उसके साथ में ये हाथ लेके जाते हैं। वो धीरे धीरे चलते हैं ना, तो हम हमारे दिमाग से चलते हैं, उसके साथ ही कर देते हैं। हाँ, है ना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जितने परेड कर रहे हैं ना, जितने सबके हाथ एक जैसे ही ऊपर जाएंगे, उतने ही ऊपर जाएंगे। इसीलिए आप जब परेड देखते हो तो आपको देखना अच्छा लगता है। कोऑर्डिनेशन में सबके पैर नीचे से अगर कैमरा रखा तो सबके पैर उतने ही खुलेंगे, हाथ ऊपर उतने जाएंगे, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन है। अब ये क्या है, ये लोग तो जुड़े हुए नहीं हैं, जो परेड कर रहे हैं सब अलग अलग होते हैं ना, राइट। फिर भी वो कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। और इंसान की बॉडी के सेल्स क्या है, एक सेल है, बाजू में दूसरा सेल है, जैसे न्यूरॉन्स हैं हमारे, है ना। तो इंफॉर्मेशन, सांप देख लिया तो आप क्या करोगे, ऐसे चौकन्ने हो जाओगे, है ना। सांप जैसे जैसे जाएगा आप अपने आप को बचाने की करोगे, राइट। अगर आइसक्रीम देख ली तो है, और अगर छूट है जितनी खानी हो आइसक्रीम, कोई भी हो नहीं तो तुम्हारा ये डिसीजन कौन डिसाइड करता है कैसे बिहेव करना है, ब्रेन, है ना। अभी ब्रेन में भी क्या है कि हमने जो देखा, आँख से जो देखा पिक्चर, है ना, उसका एक इम्पल्स सिग्नल बन के ब्रेन में गया, फिर ब्रेन उसको एनालाइज करेगा सिग्नल को, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। अगर सांप देख लिया मतलब खतरा है ना, तो पैर को और हाथ को स्ट्रिप कर देगा, ध्यान रखना टच ना हो जाए कहीं गलती से भी, राइट। अगर पीछे खुजली आ रही है तो स्किन में से मैसेज जाएगा ब्रेन को कि भाई मेरे को यहाँ पर कुछ चुभ रहा है। अब ये इतना फास्ट होता है ना कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। पीठ में से स्किन में से सिग्नल जाएगा ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको समझने की कोशिश करेगा, राइट, कि क्या है, फिर उसका आंसर तैयार करेगा। आंसर क्या करेगा, नहीं, वो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हाथ को भेजेगा कि भाई पीठ में कुछ खुजली हो रही है, तू जाके खुजा दे। ये हाथ तो लिख रहा है, तू नवरा है तो तू जाके खुजा दे। अभी देखो, अब लिखते लिखते कभी लिखना छोड़ के ऐसे नहीं करोगे, है ना, लिखना चालू ही रखोगे, जो हाथ फ्री होगा वही हाथ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ब्रेन ने इसी हाथ को इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई तू नवरा बैठा है तो जाके खुजा दे उसको पीठ में। आई बात समझ में। तो ये कितना फास्ट होता है कोऑर्डिनेशन, स्किन में से ब्रेन तक गया मैसेज। अभी स्किन में से मैसेज कैसे जाएगा, हाँ, एक सेल है, बाजू में दूसरा सेल है, राइट, बीच में गैप है। तो जैसे ही कुछ चुभा ना तो बॉडी में केमिकल रिलीज़ होगा उस तरह का। अभी जैसे आप डर जाते हो तो आपके पेट में क्या होता है, या वो चक्कर में नहीं बैठते हैं झूले मेले में, एकदम ऊपर जाता है और नीचे जाता है तो तुम्हारे पेट में क्या हो जाता है, केमिकल रिलीज़ होता है, एड्रेनलिन, है ना। तो हमारी पूरी बॉडी काम करती है ना, केमिकल के ऊपर ही काम करती है। जैसे कुछ अच्छा देख लिया, अच्छी खुशबू आ गई तो एक केमिकल रिलीज़ होगा। अगर किसी ने बदबू छोड़ दी तो तुम्हारा नाक सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, अंदर सांस मत लेना, बदबू आएगी, तो नाक बोलेगा मैं कैसे रोकूं, तो हाथ फ्री है, हाथ को बोलो यूँ कर दे। तो ये हर चीज़ में तुम्हारा ब्रेन बॉडी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते जा रहे हैं। अभी एक सेल और दूसरे सेल के बीच में गैप है। एक सेल जो है, यहाँ पर चींटी ने काटा या कुछ भी चुभा तो ये केमिकल जनरेट करेगा। ये केमिकल जनरेट होगा, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा।
वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ इस सेल तक तो आ गया, सेल के इस हिस्से तक आ गया, अभी उसको ब्रेन तक पहुँचाना है, यहाँ पर दूसरा सेल है, तो फिर वही केमिकल इस सेल में जनरेट करेगा, पास ऑन करेगा। तो हम लोग कैसे जितने जितने बल्ब जोड़ते जाएंगे सब में वो जलता जाएगा। आपने वो डेकोरेटिव लाइट्स देखी है ना, सीरीज़ यूँ जाती है, सीरीज़ कहीं नहीं जाती, बल्ब्स तो वहीं पड़े हैं। इलेक्ट्रिक करंट जाता है, पीछे स्टॉप होता जाता है, तो जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो बल्ब जलता जाएगा। जैसे ही उसमें से पास हो गया तो वापस बुझ जाएगा। देखते हैं ना आप लोग, दिवाली पे, ईद पे हम लगाते हैं घर पे रोशनी, तो उसमें एक सर्किट लगी होती है। वो सर्किट क्या करती है, करंट को डायरेक्शन देती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे बुझते हैं बंद होते हैं, बुझते हैं बंद होते हैं, कभी कभी इस तरफ जाते हैं लाइट्स, कभी कभी इस तरफ जाते हैं, कभी तेज़ चालू बंद हो जाते हैं, अलग अलग सिग्नल होते हैं ना ये। तो उसी तरह हमारा ब्रेन भी बॉडी में से सिग्नल भेजेगा अलग अलग पार्ट्स को, ठीक है ना। और यही पार्ट्स फिर हमारा बॉडी का काम करेंगे। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन। अभी व्हाट हैपन्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन, ये हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है।